آپ کو دیں کہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے سینٹ سے واک آؤٹ کیا گیا ہے۔ یہ مناظرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ اسمبلی کے، جہاں پر ایم کیو ایم اور پی پی کے ارکان، پیپلز پارٹی کے ارکان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی کی یہ مناظر ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ارکان ہے ایک جانب اور دوسری جانب ایم کیو ایم کے اراکین ہیں جو کہ آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں، اور مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھا پائی بھی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ سندھ اسمبلی جہاں پر اکثر ہی اپوزیشن کی جانب سے اور متحدہ کی جانب سے شور شرابہ کیا جاتا ہے، سندھ اسمبلی اکثر ہی مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتی ہے۔ آج بھی روایتی اجلاس جاری ہے سندھ اسمبلی کا، جس میں ایک جانب تو آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کے اراکین ہیں، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں جو کہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ اسمبلی کے۔ سندھ اسمبلی اکثر ہی سندھ اسمبلی کا اجلاس مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا ہے، اور آج پھر ایک بار پھر سندھ اسمبلی کا روایتی اجلاس جاری ہے جس میں پیپلز پارٹی اور متحدہ کے ارکان آپس میں گتھم گتھا نظر آ رہے ہیں۔ یہ مناظر ہیں سندھ اسمبلی کے۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں ایک جانب اور دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان ہیں، جن کی وجہ سے یہ دونوں میں ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے اور گتھم گتھا ہو چکے ہیں۔ ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین میں ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے رکن شمیم ممتاز کے تلخ جملوں پر ایم کیو ایم کی جانب سے یہ جو تھا اس وقت یہ مناظر دیکھنے میں آئے۔ پیپلز پارٹی اور متحدہ کے ارکان آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس اکثر ہی مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا ہے، اور سندھ اسمبلی میں ایک بار پھر روایتی اجلاس ہوا، اور اس روایتی اجلاس میں متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے اراکین آمنے سامنے آئے، اور ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں میں بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی، اور یہ بات کہی گئی کہ آپ کو بتائیں کہ یہ سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور پیپلز پارٹی کے اراکین کی جانب سے تلخ جملوں کا استعمال کیا گیا، جس پہ متحدہ کے جو اراکین تھے وہ غصے میں آ گئے اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ پیپلز پارٹی اور متحدہ کے اراکین جو ہیں آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں۔ سندھ اسمبلی کا یہ اجلاس جاری تھا، روایتی اجلاس سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو اور اس میں شور شرابہ نہ ہو، ہاتھا پائی نہ ہو اور اراکین آپس میں گتھم گتھا نہ ہو، یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ آج پھر ایک دفعہ ہوتا ہے کہ سندھ اسمبلی کا یہ اجلاس جاری تھا، اور اس اجلاس میں روایتی جو طریقہ اپنایا گیا، ایک بار پھر اراکین کی جانب سے پیپلز پارٹی اور متحدہ کے ارکان آپس میں گتھم گتھا ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے رکن شمیم ممتاز کے تلخ جملوں پر متحدہ نے ارکان پر بھڑک اٹھے، اور پیپلز پارٹی اور متحدہ کے ارکان آپس میں گتھم گتھا نظر آئے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ دیگر اراکین بھی موجود تھے اس اجلاس میں، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جو الفاظ یوز کیے گئے اس کے مطابق آپ کو بتائیں کہ یہ متحدہ اراکین جو تھے وہ گتھم گتھا ہو گئے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی ان دونوں جماعتوں کے اراکین کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی اور متحدہ کے اراکین جو تھے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رکن کی جانب سے جو الفاظ استعمال کیے گئے اس الفاظ پر متحدہ کے تلخ جملوں پر متحدہ کے ارکان بھڑک اٹھے، اور جس کی وجہ سے یہ مناظر جو تھے سندھ اسمبلی کا وہ مچھلی منڈی کا جو تھے مناظر دیکھنے میں نظر آئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز اے کے محسن سے۔ اے کے محسن، بتائیے گا کہ سندھ اسمبلی ایک بار پھر مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا، کیا ایسی بات ہوئی کہ متحدہ کے اراکین بھڑک اٹھے؟ جی، اصل میں پیپلز پارٹی کی شمیم ممتاز ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر بہت سخت جملے کہے، اور انہوں نے ایم کیو ایم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لندن کی بات کریں گی اگر وہ دبئی کی بات کرتے ہیں تو، جس پر وہ بار بار یہ کہتی رہیں، اشارے کرتی رہیں، اور اس پر ایم کیو ایم کے ارکان پہلے تو الفاظ اور ہوٹنگ کرتے رہے، جس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے آصف بھٹی ایم کیو ایم کے رکن ہے وہ آگے بڑھے بڑے غصے میں، اور وہ جو ہے وہ ان کی جانب بڑھتے چلے گئے، جس کے بعد ایم کیو ایم کے ارکان زیادہ تعداد میں آگے بڑھنے لگے، پھر پیپلز پارٹی کے ارکان آگے بڑھے، اور اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ارکان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ جام خان شورو آگے بڑھے جو کہ وزیر بلدیات ہیں، انہوں نے بھی ہاتھا پائی کی، جو ہے آصف بھٹی ایم کیو ایم کے رہنما ہے انہوں نے ہاتھا کی، جبکہ اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن اور دیگر ارکان جو ہیں وہ ان تمام معاملات کو ٹھنڈا کرتے رہے، چھڑاتے رہے، اور یہ کافی دیر تک یہ معاملہ جاری رہا۔ ایوان بالکل مچھلی منڈی اور دنگل کی سی کیفیت جو ہے وہ پیش کرنے لگا تھا، اور اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ
जो वीडियो है जो के लाइव जा रही होती है, उस वीडियो को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और ताकि जो है वो चैनल्स इस वीडियो को ना दिखा सकें। जबकि प्रेस गैलरी में बैठे सहाफियों ने जब मोबाइल से फुटेज बनाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी अमले को फौरी तौर पर ऊपर भेज दिया गया और सहाफियों को मना किया गया कि वो मोबाइल से भी ये फुटेज। तो एके मोहसिन, अभी क्या ये अरकान अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके हैं? दोबारा सवाल कीजिएगा प्लीज। एके मोहसिन, इन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, बात हाथापाई तक जा पहुंची, तो क्या अब इन मामलात को सुलझा लिया गया है? जी, इजलास मुलतवी हो गया है और उसके बाद मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई है और मामला तकरीबन ठंडा हो गया है और उन अरकान को आपस में गले भी मिलाया है। जामहान शोरो को, आसिफ भट्टी को आपस में गले मिलाया है, जिसमें मैं मेन किरदार अदा किया है अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने। और अभी इस वक्त जो है माहौल बिल्कुल ठंडा है। कल तक के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ऐवान तकरीबन खाली हो गया है। अरकान अपने अपने जो है वो रास्तों पर जा रहे हैं। इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ऐवान खाली हो चुका है। ख्वाजा इजहारुल हसन आगे बढ़े और अरकान के दरमियान जो लड़ाई देखने में आई उसको ख़त्म करवाने में वो अपना किरदार अदा कर रहे थे। आपको बताएं कि ये इजलास मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। सिंध असम्बली का इजलास था और इस इजलास में शमीम मुमताज़ की जानिब से कुछ बातचीत की गई, जिसकी वजह से आसिफ भट्टी MKM के रहनुमा आगे बढ़े और इनकी जानिब से आपको ये मनासिर देखने में आए कि गुत्थम गुत्था हुए और बात हाथापाई तक जा पहुंची और उसके बाद ये इजलास जो है सिंध असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं सिंध असम्बली के हैं, ये मनाजिर हैं जहां पर पीपल्स पार्टी की रुकन शमीम मुमताज के तल्ख जुमलों के बाद ये इजलास जो था वो मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा और उसके बाद MKM के अरकान आगे बढ़े और उसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान भी आगे आए और बात हाथापाई तक जा पहुंची। हमने मनाजिर देखे कि ख्वाजा इजहारुल हसन जो थे वो इन अरकान को अपनी अपनी नशिस्तों पर बिठाने में अहम किरदार अदा करते रहे ताकि ये जो अरकान हैं आपस में गुत्थम गुत्था ना हो। और सिंध असम्बली का इजलास अक्सर ही मछली मंडी का मंजर पेश करता है और आज भी कुछ ऐसा ही कुछ रवायती इजलास ही देखने को मिला जहां पर अरकान की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के अरकान और MKM के अरकान आपस में आमने सामने आए, गुत्थम गुत्था हुए और हमने देखा कि बात हाथापाई तक जा पहुंची। जबकि MKM के रहनुमा सीनियर रहनुमा है ख्वाजा इजहारुल हसन, जिनकी जानिब से इन अरकान को जो था वो ठंडा करवाया गया। इस मामले को इन अरकान को अपनी अपनी नशिस्तों पर बिठाया गया। उसके बाद सिंध असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सिंध असम्बली का इजलास जहां पर बहस जारी थी, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जिसके बाद सिंध असम्बली का जो ये इजलास था मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। ये अरकान के मनाजिर हैं। आपको बताएं कि ये इजलास में ये अरकान मौजूद थे और ये मामला उस वक्त गर्म हुआ जब पीपल्स पार्टी की शमीम मुमताज़ की जानिब से तल्ख जुमलों पर मुत्तहिदा के अरकान भड़क उठे और दोनों अरकान आमने सामने आए और हाथापाई के मनासिर भी देखने आए। सिंध असम्बली का इजलास रवायती होता है जहां पर अक्सर देखने में आता है कि शोर शराबा होता है और स्पीकर जो है इनको खामोश करवाने की कोशिश करते हैं और मुत्तहिदा की जानिब से या कुछ दीगर सियासी जमातों की जानिब से वॉकआउट किया जाता है और कुछ ना कुछ सिंध असम्बली के इजलास में देखने को मिलता है। और आज भी हमने ऐसे ही मनाज़र देखे एक बार फिर जहां पर पीपल्स पार्टी के अरकान और MKM के अरकान आमने सामने आए, गुत्थम गुत्था हुए। ये बात शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी की रुकन शमीम मुमताज़ की जानिब से, जिन्होंने तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया और उनके तल्ख जुमलों के इस्तेमाल के बाद MKM के अरकान जो थे वो अपनी नशिस्तों से उठे और ये सामने आए। उसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान भी एक दूसरे के सामने आए और गुत्थम गुत्था हुए, इनमें तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, बात हाथापाई तक जा पहुंची। MKM के रहनुमा आपको बताएं कि ख्वाजा इजहारुल हसन ने इन अरकान को मुंतशिर करने में अहम किरदार अदा किया। ये देख सकते हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन इन अरकान को मना कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठें। यहाँ पर MKM के रहनुमा आसिफ भट्टी और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान मौजूद थे जिनमें ये तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और उसके बाद इन दोनों जमातों की जानिब से अहम रहनुमाओं की जानिब से किरदार अदा किया गया कि इनको मुंतशिर किया गया। उसके बाद ये इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास में MKM के मेयर डिप्टी और इसके अलावा इंतखाबात मुलतवी होने पर यह एहतजाज जारी था। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की रुकन शमीम मुमताज़ के तल्ख जुमलों पर MKM के अरकान जो थे वो भड़क उठे और उसके बाद हंगामा आराई देखने में आई
और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा, जबकि सिंध असेंबली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की रुकन शमीम मुमताज की जानिब से तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से एमकेएम के अरकान जो थे वो भड़क उठे और एमकेएम के अरकान की जानिब से भी हाथापाई के मनाज़िर देखने में आए। सिंध असेंबली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया और ये ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। ये सिंध असेंबली का इजलास था, सिंध असेंबली के ये मनाजिर हैं, ये जो देख सकते हैं, और सीनियर रहनुमा हैं ऐवान के, जहां पर अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हैं और एक दूसरे पर आप देख सकते हैं कि तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बात यहां तक पहुंची कि हाथापाई तक पहुंच गई। पीपल्स पार्टी की ये रुकन की जानिब से कुछ तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया गया था, शमीम मुमताज़ की जानिब से तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद एमकेएम मुत्तहिदा के ये अरकान जो थे वो भड़क उठे और मामला जो था वो हाथापाई तक जा पहुंचा। उसके बाद ख्वाजा इजहारुल हसन मैदान में आए और उन्होंने इन अरकान को मुंतशिर किया और ये इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये मनाजिर सिंध असेंबली के हैं। सिंध असेंबली में हमेशा ही शोर शराबा होता है, मछली मंडी का मंजर पेश करता है ये ऐवान, और आज फिर ये रवायती इजलास हुआ सिंध असेंबली में, जहां पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और बात हाथापाई तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी की रुकन शमीम मुमताज के तल्ख जुमलों पर मुत्तहिदा की जानिब से ये सामने आए और इनकी जानिब से आपको बताएं कि हंगामा आराई की गई, हाथापाई हुई और उसके बाद ख्वाजा इजहारुल हसन मैदान में आए और उन्होंने इन अरकान को मुंतशिर करने में ये अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद सिंध असेंबली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस इजलास में बहस जारी थी, लेकिन जब सिंध असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शमीम मुमताज़ की जानिब से तल्ख जुमलों का इस्तेमाल हुआ तो एमकेएम के अरकान भड़क उठे और बात हाथापाई तक जा पहुंची, हंगामा आराई हुई। उसके बाद ये ऐवान जो था वो मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा और इस इजलास को मुलतवी करना पड़ा। एमकेएम इस इजलास में एमकेएम के मेयर और दूसरे जो थे वो इंतखाबात के हवाले से एहतजाज कर रहे थे, मुलतवी होने पर यह एहतजाज कर रही थी एमकेएम की जानिब से, लेकिन इसके बाद पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमीम मुमताज़ की जानिब से तल्ख जुमलों का जब इस्तेमाल हुआ तो ये एमकेएम के अरकान जो थे वो भड़क उठे और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और एक दो बात हाथापाई तक जा पहुंची और इस इजलास को कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। ये मनासिर आप देख सकते हैं सिंध असेंबली के, जहां पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के अरकान कुछ देर पहले आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था इन अरकान में और इस बात को ख्वाजा इजहारुल हसन ने इन अरकान को मुंतशिर किया और इन अरकान को मुंतशिर करने में उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। एमकेएम और पीपल्स पार्टी के अरकान में हाथापाई भी देखने में आई और सिंध असेंबली का इजलास जो था वो कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। ये मनासिर आप देख सकते हैं सिंध असेंबली के, जहां पर सिंध असेंबली में हंगामा आराई हुई और ये ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के अरकान जो थे वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमीम मुमताज़ की जानिब से तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया गया था और उनके इन जुमलों के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान जो थे वो भड़क उठे और इन अरकान की जानिब से डाइस के सामने आए ये अरकान और इन अरकान की जानिब से खूब शोर शराबा किया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान भी सामने आए, आपस में हाथापाई के वाक़यात भी देखने में आए और ये ऐवान जो था वो मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। इजलास में एमकेएम और इसके अलावा मेयर, डिप्टी मेयर्स इंतखाबात मुलतवी होने पर यह एहतजाज किया जा रहा था और जिसकी वजह से ये पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमीम मुमताज़ की जानिब से जब तक जुमलों का इस्तेमाल हुआ तो ये सारे अरकान आप देख सकते हैं कि जमा हो गए और इनकी जानिब से एक दूसरे पर जुमले कसे गए और तक जुमलों का तबादला भी हुआ और बात हाथापाई तक जा पहुंची। उसके बाद इस इजलास को कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। कराची से खैबर तक की खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।